Jai Guru students. Students, welcome once again in the economics class. Students, today we will study the chapter of the Indian economic development, that is Indian economy on the eve of independence. In Indian economy on the eve of independence, as I have explained in the earlier class also, that Britishers has ruled over India 200 years and they have totally exploited our economy. So during the time of independence or the eve of independence, our economy at a very low level and it is known as a stagnant economy. हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया और उन्होंने इस देश को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था बिकॉज दे केम टू इंडिया फर्स्ट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इंडिया में तो बहुत कुछ है जिससे कि वो अपने देश में उसको लूट सकते हैं, अपने देश में ले जा सकते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने यहीं बसना शुरू कर दिया। और लगभग 200 ईयर्स दे हैव रूल्ड इन इंडिया। 200 सालों तक उन्होंने इंडिया में राज्य किया और उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था। वेदर दे आर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, infrastructure development, everything. Exploitation of British rule was quite visible in different sectors of the economy. So in the previous class I have explained you the features of Indian economy on the eve of independence, that at the time of independence Indian economy was known as the stagnant economy, backward economy, low level of infrastructure, etc. And before that इंडिया ब्रिटिशर्स के हमारे देश में आने से पहले हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था. Why it was known as a golden sparrow? Because that time we are having self-sufficiency in the resources, in the food grains. Our world in the handicraft industry is a worldwide famous. और हमारे देश में हर चीज़ था, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी. बट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर के पूरी तरह से हमारे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, दे हैव एक्सप्लॉइटेड एवरीथिंग. एंड नाउ आवर इकोनॉमी इज नोन एज द stagnant and the backward economy during the time of independence. So that Britishers has exploited our different sectors of our economy. So first of all, I am going to explain you about the agriculture sector. Agriculture sector, you know student, that our economy is known as the agrarian economy. Agrarian economy का मतलब था कि that our main occupation is agriculture. इंडिया इज हैविंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दैट इज हमारे देश की जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो एग्रीकल्चर थी. दैट इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ 85% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दे आर फॉलोइंग एग्रीकल्चर एज देयर ऑक्यूपेशन. बट देन ऑल्सो आर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो. हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया था. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वी आर सीइंग stagnant agriculture, stagnant poverty, and so what they have done for the agriculture sector. Agriculture sector in India is known for the low productivity, backwardness in agriculture. Stagnation in agriculture sector के जो reasons है, agriculture sector was stagnation, you know, fixed था, means no growth was there. Our productivity is very low. लो प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर. दैट इट प्रोड्यूस डिफरेंट फूड ग्रेन्स बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. तो स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन के क्या रीजन थे? फर्स्ट रीजन इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम. ड्यूरिंग दैट टाइम लैंड सेटलमेंट सिस्टम वॉज पॉपुलर, दैट इज जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम वॉज देयर. ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे तो जमींदारी सिस्टम को उन्होंने शुरू किया. Zamindars have collected the fixed amount of money, that is known as the lagan, every month, and there is no fixed date for collecting the revenue. So the revenue they are collecting is known as the lagan. Whatever the farmers are producing in their own land, they are doing so much hard work, and maximum part of the food grains has taken by the zamindars as a name of the lagan. So वो लगान वसूलते थे, and those farmers, those peasants who are not able to pay the lagan, they will take back their lands and they will now remain landless laborers. तो हमारे देश के जो किसान थे, गरीब किसान थे, जिन जो लगान नहीं दे पाते थे, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड देम वेरी मच और उनकी ज़मीनें छीन करके उनको लैंडलेस लेबरर्स बना दिया था. एंड इवन दीज लेबरर्स आर नाउ as a in place of owner of the land, they are now become the tillers of the land. And then also our productivity is very low because जमींदार जो थे वो अपने फ़ायदे के लिए बस पैसा जो लगान लेते थे, दे आर नॉट डूइंग एनी वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द फार्मर्स. वो उस पैसे से अपनी लग्जरीज लाइफ को रन करते थे और उन्होंने फार्मर्स को पूरी तरह से अपना स्लेव बना दिया था, लेबर्स बना दिया था. और उनको प्रोडक्टिविटी का जो बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रेन्स हैज़ टेकन गिवन टू देम इन द एज दे आर वर्किंग सो हार्ड. तो उनको मजदूरी के रूप में थोड़ा सा अनाज बस दे दिया जाता था.
In this way, the land settlement system was there, and because of that, our productivity is very low in agriculture sector. Second is commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture, you know that Britishers forced Indian farmers to produce cash crop instead of producing food grains. They are forcing to produce jute, cotton, etc. कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने को उनको फोर्स करते थे, एंड दे आर गिविंग large means they're expensive also, and even they are getting cash crop, they are purchasing from the farmers at a high rates. तो कैश क्रॉप्स उनको प्रोड्यूस करने को बोलते थे, और उनको फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की उस टाइम पे परमिशन नहीं थी. सो दे आर फोर्सिंग द इंडियन फार्मर्स टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. उन्होंने एग्रीकल्चर कमर्शलाइज कर दिया था. एंड ऑल्सो दे आर फोर्सिंग इंडियन फार्मर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो इन देयर फील्ड. इंडिगो, you know, a blue color powder is there which are used for dyeing the cloth. और अगर हम ब्लू इंडिगो अपनी फसल में अगर खेतों में एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती थी. तो ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करते थे कि दे शुड प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स लाइक wheat, राइस, pulses, etc. Next is the low level of productivity. Our productivity during that time is very low. हमारी कंट्री जो थी इसका मैक्सिमम पार्ट जो था, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर वर्क, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर. देन ऑल्सो आवर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो. द प्रोडक्टिविटी इज एज सच दैट इट डजंट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ईच एंड एवरी पीजेंट्स ऑफ द आवर कंट्री. हमारे देश के लोगों की जो खाने की ज़रूरत थी, प्रोडक्टिविटी जो इतनी कम थी कि वो भी हम सफिशेंट नहीं थी, हमारे लिए खाना पर्याप्त नहीं हो पा रहा था. बिकॉज वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल मैथड, द फार्मर्स आर इलिटरेट, दे आर नॉट हैविंग एनी इरीगेशन फैसिलिटीज, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन मानसून. And also farmers are exploiting them very much. Britishers exploited the farmers very much, so that is why our productivity is very low. Adverse effect of partition. After independence, when India is divided into two parts, that is India and Pakistan, so maximum fertile part of our country goes to Pakistan. हमारे देश में जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता था, कॉटन प्रोड्यूस होता था, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस था, दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज नाउ शिफ्टेड टू पाकिस्तान. वो पार्टीशन में वो एरिया जो था हमारे पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था. इसकी वजह से जो था पार्टीशन का एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, दैट प्रोडक्टिविटी जो थी बहुत कम हो गई. हमारा जो फर्टाइल एरिया था दैट विल बी हैज़ नॉट दे हैव टेकन बैक, दैट इज गिवन टू द पाकिस्तान, एंड दैट इज वाई आवर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी लो. सो these are the reason of stagnation of agriculture. हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टैग्नेशन था, स्टैग्नेशन मीन्स कांस्टेंट हो गया था, फिक्स हो गया था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, ना ही हमें कोई प्रॉफिट हो रहा था. इसका रीज़न यही था कि बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम वॉज पॉपुलर दैट टाइम, एंड फार्मर्स आर फोर्सिंग बाय द ब्रिटिशर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स. Productivity is low because they are using traditional method. They don't know how to produce land, food grains, and also their land is also very small. So because of all these reasons, that our agriculture sector was at very low level, and the productivity is now in the stagnant. Next is industrial sector. ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही तो एक्सप्लॉइट नहीं किया था, बल्कि ही हैज़ एक्सप्लॉइटेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो. Before the Britishers came to India, our industrial sector was worldwide famous. That is, Indian handicraft is popular in other countries also. But when the Britishers came to India, the first attack is on our handicraft industry. सबसे पहले अटैक उन्होंने हमारी handicraft industry पे किया. That is, उन्होंने सबसे पहले they have abolished they demolished the handicrafts of India. They are not providing raw material to these handicraft industries, and even the workers who are working in these industries, they are not giving any kind of help, and even they are forcing them to that they can leave the jobs, or they will shut down these industries. And there are so many reasons because of that. The handicraft industries was totally demolished. That is known as deindustrialization. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा पूरी तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था. द रीजन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर फर्स्ट इज डीइंडस्ट्रियलाइजेशन. डीइंडस्ट्रियलाइजेशन में डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश से खत्म कर दिया था, डी मतलब हटा देना, खत्म कर देना, और उसने सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया. नेक्स्ट था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई, ब्रिटिशर्स ने उसे एबॉलिश कर दिया, तो उसकी वजह से बहुत सारे उसके एडवर्स इफेक्ट हुए. एंड देर आर द एडवर्स इफेक्ट. फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे देश में जो लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उनके पास काम नहीं था. वो जो जितने भी वर्कर्स जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, दे ऑल नाउ रिमेन अनएम्प्लॉयड. सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज इंक्रीज. एंड ऑल्सो नेक्स्ट इफेक्ट उसका ये हुआ कि वी हैव टू डिपेंड मोर ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. हमें जो अपनी फिनिश गुड्स, हमें जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी, पहले हम अपने देश में ही प्रोड्यूस करते थे. अब डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नाउ वी हैव टू
import these products from other countries. अब हमें foreign countries से import करना पड़ रहा था. That is the product which is made from our raw material. We have to purchase from other countries. हमारे देश की ही रॉ मटेरियल से बनी चीज़ों को हमें दूसरे देश से खरीदना पड़ रहा था, और वो भी बहुत ही महंगे दामों में. नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यू नो दैट द इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग मशीन्स, टूल्स एट्सेट्रा विच आर यूज फॉर फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन. वो इंडस्ट्रीज जिसमें कि मशीन्स वगैरह प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि हमें दूसरी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में और प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है. तो दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. हमारे देश में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी. वी हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर कैपिटल गुड्स, मशीनरीज एट्सेट्रा. तो इसकी वजह से हमारे देश में ना तो कोई हैवी इंडस्ट्रीज बनी, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बन पाई. तो वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम. देन लो कंट्रीब्यूशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, एंड ब्रिटिशर्स हैज डी इंडस्ट्रियलाइज आवर कंट्री इंडस्ट्रीज. बिकॉज ऑफ दैट आर प्रोडक्शन फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज, द जीडीपी इज़ वेरी लो. हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कम हो रहा था. जीडीपी कम क्यों हो रही थी? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस और द लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, आर जीडीपी इज डिक्लाइनिंग, एंड द कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ production goods produced from India is very low. Next is limited role of public sector. Public sector, you know, government is also not interested in starting industries in India. They are only busy in they have been they are involved in railways, communication, and they only in some of the big industries, and rest of the industries the government is not paying any attention. And because of the limited role of public sector, negligible role of the public sector, our industrialization is at a very low level. हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो रहा था, इंडस्ट्रीज नहीं बन रही थी. वी आर नॉट हैविंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर. सो वी हैव टू डिपेंड मोर ऑन आवर कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट्स टू फॉरेन कंट्रीज. सो दिस इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो. दैट ब्रिटिशर्स नॉट ओनली एक्सप्लॉइट एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में उसमें अटैक किया था और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया था. दे हैव डी इंडस्ट्रियलाइज आवर handicrafts and other industries.